Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So SBI Junior Estate notification came yesterday. And it was a shocker. There are vacancies reduced drastically to 5,000 from 8,000 around in earlier years. Now this has led to so many questions in your mind. And since last evening, lot of questions are coming on our channel. And I told in the evening video, don't fill the form for 1 week. Hold your application for 1 week. I will be covering all your questions gradually through videos. So in a series of videos throughout the week, I will explain the various aspects of this notification. And this knowledge of notification will help you to decide to fill the form. So the one question which is raised is about filling of form from other circles or other zones. So before deciding whether I should apply from the other circle or not, you should take care of some guidelines that is contained in the circular that will decide your future. First thing is, there is a condition that the employees, those are working in State Bank, either in clerical or officer cadre, they are not eligible to apply under the project, because there are large number of employees, those are working in other circles. And sometimes they try to fill another form for home circle. This is not permitted. So if you are already working in State Bank, you are not eligible to fill this form again. So this is a sort of a guidance to the new candidates also. Say today you decide to fill from far-flung circle. You get the job, but you will not be eligible to fill from your own circle in future. So this will show you a path how you should choose your circle. We will discuss these things in detail subsequently. Right now I am only covering the silent features of the notification so that you have the full idea in which direction this notification is. Further, this says the candidates who were earlier employees of State Bank and resigned from clerical or officer cadre, they are also not eligible. So if someone has already worked in SBI in either of the cadre, he or she is not eligible to participate in this. Further, no inter-circle or interstate transfer for JA to be recruited will be considered. That means if you are posted in a particular circle, you have to serve in that circle. There will be no transfer to your parent circle or state. This point you have to keep in mind, because some people feel that today I can apply from some state, after few years I will come back to my state. This is not permitted. This is very clearly stated. And next is, merit will be made state-wise, category-wise. And the people, those who have not, you can say, learned the language or read the language in class 10th, they have to pass the language proficiency test, that is LPT. And the language for a particular state is mentioned there. And sometimes the question is whether we have to know all the languages mentioned there. Answer is no. Either one of the languages you must be knowing out of those languages. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. SBI जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आया और शॉकर के साथ आया. और ये शॉकर क्या है? Drastic reduction in number of vacancies. The number of vacancies are just 60% of previous year. That means drastic reduction by 40%. And in some of the states there are no vacancies.
पीपल आर वरीड एंड दैट्स व्हाई आई पोस्ट. इसीलिए मैंने रात को एक वीडियो पोस्ट किया. ड्रास्टिक रिडक्शन वैकेंसीज के साथ आया और मैंने एक वीडियो पोस्ट किया कि अभी एकदम आप मत अप्लाई करें, एक हफ्ते रुके. आपके जितने प्रश्न होंगे इन प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे और इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे और फिर आप अपना ओपिनियन बना के ठंडे दिमाग से आपने अप्लाई करना है. जल्दबाजी में मत अप्लाई करिए, बाद में फिर आप एप्लीकेशन बदल नहीं सकते हैं. कुछ लोग हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, बाद में पछताते हैं. तो आज मैं एक विषय आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो आपको बताएगा कि अगर आप गलत डिसीजन ले लेते हैं तो बाद में क्या हो सकता है आपके साथ. अब इसमें एक कंडीशन ये है कि यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं क्लरिकल या ऑफिसर कैडर में, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते. अब कई लोग कहेंगे कि इस क्लॉज की वैल्यू क्या है, क्यों ऐसा लिख दिया, अरे जिसकी नौकरी लगी हुई है वो क्यों अप्लाई करेगा. ये वास्तव में उन लोगों के लिए है कि पिछली बार मान लीजिए या उससे पिछली बार इन लोगों की नौकरी लग गई किसी और स्टेट के अंदर. अब वहाँ पर खुश नहीं है, वहाँ पर परेशान है और इंटर सर्कल ट्रांसफ़र हो नहीं सकती है. तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो अब नौकरी तो लग गई, अब इस बार अपने स्टेट से अप्लाई कर देते हैं और फिर रिज़ाइन करके अपने स्टेट में ज्वाइन कर लेंगे. स्टेट बैंक इस बात की अनुमति नहीं देता. मीन्स यदि आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हैं और वर्तमान कर्मचारी है स्टेट बैंक के, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते. अब कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि स्टेट बैंक छोड़ दिया उन्होंने, पहले वो स्टेट बैंक में थे, कभी क्लर्क थे, कभी अफसर थे और छोड़ के चले गए. अब वो दोबारा स्टेट बैंक को अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट में, क्लरिकल में. तो इनको भी ये बताया गया है कि आप भी एलिजिबल नहीं हैं, आप इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत अप्लाई नहीं कर सकते. फिर तीसरी बात क्या बताई गई है कि जो लोग भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट की कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज अलग से मेरिट बनेगी और इसीलिए इंटर सर्कल और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र परमिटेड नहीं है. तो अगर आप एक स्टेट से सेलेक्ट हो गए और कल को आप अपने होम स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र के पात्र नहीं हैं. तो आपने सोच समझ कर ये अप्लाई करना है कि जिस स्टेट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पर काफ़ी वर्षों तक नौकरी कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ. दूसरा, क्लरिकल कैडर के अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है और ये किन पे लागू है, जिन्होंने उस राज्य की जो भाषा उन्होंने दर्शाई है वो 10वीं क्लास में नहीं पढ़ी है. तो कई बार एक स्टेट में एक से अधिक भाषाएं दिखाई होती हैं, तो कई लोगों के मन में प्रश्न आता है क्या सारी भाषाएं आनी चाहिए? नहीं, उनमें से एक आनी चाहिए. अगर आपको एक भाषा उसमें से आती है, मीन्स 10वीं क्लास में आपने पढ़ी है, तो आपको एलपीटी नहीं देना. अगर 10वीं क्लास में आपने वो भाषा नहीं पढ़ी है तो आपको एलपीटी पास करना पड़ेगा. मतलब वो भाषा सीखनी पड़ेगी और एलपीटी पास करना पड़ेगा. अगर आप एलपीटी पास नहीं कर पाते हैं तो ये नौकरी आपको नहीं मिलेगी. तो जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसको भरने से पहले ये बेसिक बातों का हमें ख्याल रखना है. तो हम एक एक करके कई विषयों को चर्चित करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी होगी नोटिफिकेशन के बारे में और फिर एक हफ्ते के बाद इन सब विषयों को अपने समक्ष रख के आप फैसला करके फॉर्म को भरिएगा. जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट में आप डालते जाइए, मैं इकट्ठे करते जा रहा हूँ आपके कमेंट और जो कॉमन कमेंट्स हैं उस पर एक एक विषय को लेके हम वीडियोस बनाते जाएंगे और आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल.